Warm greetings. On behalf of Friday.Waters, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as Citizens Collective, we welcome you to today's session. Friday.Waters is a continuation of signature series Wednesdays for Water. The idea of Friday.Waters is to bring water knowledge available in the various alternate forms at one place for developing a better understanding about the water matters in different possible ways. The activities initiated in Friday.Waters include Water Talkies, which is today, Water Reading Club, Water Thesis Club, and Water Arts. Each of these sessions take place once a month. The Friday.Water sessions are designed to be fun-filled and yet be fruitful. Keep following us at www.w4w.in for regular updates of all the events. My name is Mansee Bhargava, and I am the moderator for today's session of Water Arts. I am joined by Anuja Bali as the discussant of the session. For today's session, we have Ms. Rishu Nigam to discuss the film, namely When Every Drop Counts, which is directed by her. Let me hand it over to Anuja to introduce Rishu and discuss the film with her from here on. Over to you, Anuja. Thank you. Thank you so much, Mansee, and welcome, Rishu. Really happy to have you. Greetings, everyone. Today we have director Rishu Nigam to discuss this film, a very special film, When Every Drop Counts, and more. First, let me introduce her. Rishu Nigam is an independent writer, documentary filmmaker, and trainer specializing in energy and climate communication. She previously worked as Associate Director of Communications and Advocacy at the Energy and Resources Institute in New Delhi, which is TERI, where she led a team of writers and video producers to create multimedia content on sustainable development, my favorite topic. Rishu currently mentors cohorts of rural youth from central India in video storytelling on ecology and conservation. Rishu is a Chevening alumna and has studied broadcast journalism from New Delhi. So welcome, Rishu. We are very happy and excited to have you as our guest today to discuss this very important. And even though this film was made nearly a decade ago, it's so surprising how every moment of this film, every dialogue and every bit of narration is applicable even today. And I guess more so as we progress, it will continue to. So welcome. Thanks, Anuja. Thanks, Mansee. And thank you for inviting me. Thank you for finding my film after such a long time. It was made, I think, in 2013 or 14. And thank you for letting me know about W4W Foundation. And I was just talking to Mansee before everybody joined, and I'm just fascinated by how you've been doing this of different formats, different things, and mobilizing a whole community around water for the last, I think, 2 years roughly. Yes. So I just want to congratulate both of you and your entire team. This is a really important work that you're doing. Thank you. जैसे वो कहते हैं ना, एक गाना है, लव के लिए कुछ भी करेगा, वैसे वाटर के लिए कुछ भी करेगा. सो साम दाम दंड भेद, हम हर मीडियम, हर कम्युनिकेशन, हर कोलैबोरेशन, हर एक पर्सपेक्टिव और एंगल और स्टेक होल्डर को लाकर इस प्लेटफॉर्म पर उनको जोड़ना चाहते हैं, बिकॉज ये अकेले का काम नहीं है. इट्स जस्ट हर एक की नीड है, लेकिन ये एक कोई भी एक बंदा नहीं कर सकता या बंदी नहीं कर सकती. उसके लिए हम सबको साथ में करना है. एंड इसलिए हम लोग ढूंढ के लिटरली ढूंढ के लाते हैं. वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, बट this time, thankfully, Girija Bharat helped us find this film, but unfortunately there was some tragedy in the family, so she could not join us today. लेकिन thanks to her कि हम आपके साथ जुड़ पाए.
So, why don't I just start by showing you a little, एक कहानी जो इस फिल्म की शुरुआत है वो एक कहानी से होती है, बड़ी एप्ट कहानी है वो. So मैं वो दिखाना चाहूंगी आप लोगों को. To start with, okay, the story starts here. एक हिरण और हिरणी घूम रहे थे कहीं. पानी पीने को उनको भी चाहिए था, लेकिन जहां पानी पीने गए वो पानी इतना कम था वो दोनों नहीं पी सकते थे. उसने तो कहा तू पी, उसने कहा तू पी, दोनों ही मर गए. तो पास में से कोई लोग आए तो उन्होंने कहा तो शिकारी नहीं दिख रहा, इनके कहीं तीर भी लगा हुआ नहीं है, इन दोनों ने कैसे मौत हो गई इनकी. तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? नेह घणो जल थोड़ो, तू पी कहवता दोनों तजो शरीर. ये कहानी है. तू पी में दोनों ने तज दिया अपना शरीर, मतलब त्याग दिया अपने प्राण. सो जो हर एक बूंद जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये जो शुरुआत की कहानी है और जो मिसेस मदन कौर जो वहां पर उस वक्त आई थिंक सरपंच थे उस जब आपने फिल्म किया था. हाँ, वो जिला प्रमुख थी. जिला प्रमुख थे, यस. तो उन्होंने जो ये इतने स्पष्ट और सटीक तरीके से बताया है, और फिर उनका इतना फिल्म में हम देखते हैं कितना उनका एक पार्टिसिपेशन रहा है. तो आप जब आपने ये फिल्म शुरू की थी बनाना, जब आप डायरेक्टर के रूप में उसमें इसे जुड़े थे, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगा कि ये क्या होने वाला है आगे? एक्सपीरियंस आपका, कुछ आपके कुछ एक्सपेक्टेशन थे, या डिड यू हैव एनीथिंग लाइक अ बैकग्राउंड? सो जब मैंने शुरुआत करी तो गिरिजा इन्वॉल्व थी उसमें. गिरिजा वाज टेक्निकली गाइडिंग. हम मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए बना रहे थे ये फिल्म. तो जब शुरुआत हुई और मतलब ये टॉपिक आया कि बाड़मेर में वाटर हार्वेस्टिंग पे बनानी है, तो मैंने जब पढ़ना लिखना शुरू करा, रिसर्च करना शुरू करा, तो दो किताबें थी अनुपम मिश्रा जी की, राजस्थान की रजत बूंदे और आज भी खरे हैं तालाब. ये दो किताबें जो मैंने जब पढ़ी तो मेरे लिए बहुत ही एक रेवलेशन वाली बात हुई कि मुझे कुछ भी ज्यादा पता नहीं था. मतलब ठीक है, हम सब सुनते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान सूखा इलाका, ये सब सुनते हैं, पर उनकी किताब पढ़ना और उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके वीडियोस देखे. उनकी एक टेड टॉक है, वो बहुत ही, आज भी उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं. और मतलब उसको सुन करके आई स्टिल गेट गूज बम्प्स. तो उनकी किताब पढ़ने से और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं राजस्थान की परंपरा को, राजस्थान के लोगों को, तो बहुत मतलब मेरे लिए तो वो ही एक वहीं से ही एक्साइटमेंट शुरू हो गया था कि वाह क्या सब्जेक्ट मिला है, मतलब फिल्म बनाने के लिए. और फिर जब वहां गए तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे याद है शायद जुलाई या अगस्त के टाइम पे गए थे. तो उस वक्त बाड़मेर में मतलब दिन में शूट करना, मतलब 42-45 डिग्री तक टेम्परेचर का होना. और एक बार पहले मैंने एक और फिल्म बनाई थी बिश्नोईज के ऊपर, लेकिन वो कुछ मतलब 2005 या 2006 में बनाई होगी. तो मैं राजस्थान काफी टाइम बाद जा रही थी, और वो भी वेस्टर्न राजस्थान, मतलब बिल्कुल ड्राई डेजर्ट की तरफ. तो टफ था, लेकिन वहां पे जो लोगों की वार्मथ है, जो हॉस्पिटैलिटी है, और इतने इतने कठोर सर्कमस्टेंसेस में लोग रहते हैं, इतनी पानी की किल्लत में रहते हैं, पर इतने खुश रहते हैं कि शूटिंग करने में बहुत मजा आया. मतलब हालत खराब हो जाती थी गर्मी के मारे, इतना स्टेमिना उतना नहीं होता था, लेकिन it was just fantastic to see how people are still so cheerful in the middle of so much of scarcity.
तो ये था मेरा मतलब रिसर्च का दौर। मेरे लिए जो मेरी मेजर इंस्पिरेशन थी, जो मेरी मेजर सीख थी, वो अनुपम मिश्रा जी की किताब से आई, उनके कुछ वीडियोस देख के आई। और that's why I found it very necessary that I give his name in the credits of the film, because it's, he's left so much for us to learn. It's true. मतलब ऐसा होता है ना कि एक चीज, द कनेक्टिंग द डॉट्स जो होता है, कभी कभी हम एक या दो के बारे में सोचते हैं, लेकिन कितनी छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस और इतने बड़े तरीके से हमारे सोचने के तरीके को, हमारे नजरिए को, हमारे वो, जैसे आप कह रहे हो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं, वैसे मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लगने लग गया कि ओ माय गॉड, मैंने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो पढ़ के कितनी ओवरवेल्म हो जाऊंगी मैं भी। सो कितना इमोशनल टॉपिक है ये, सोचिए, वाटर या सूखा। पानी के दो एक बहुत ही ऑपोजिट रूप है। सूखा में नो पानी और बाढ़ में पानी ही पानी, लेकिन दोनों हमें लाइक जीवन संग्राम में घुसा देते हैं कि आप कैसे बचोगे, कैसे जियोगे, एक लाइफ एंड डेथ का इशू हो जाता है। सो आई एम श्योर मैं इसके बाद में वो जरूर पढ़ने वाली हूँ और उनकी टेड टॉक भी सुनने वाली हूँ। थैंक यू फॉर द रेफरेंस। और मैं आपको आगे भी कुछ कुछ दिखाते रहूंगी उसके बारे में। लेकिन जब आपने जैसे कि कहा कि 42-44 डिग्री में आप शूट कर रहे थे और सेकेंड टाइम काफी दिनों के बाद एक दूसरे उसमें गए थे, तो क्या आपने वाटर स्कैर्सिटी खुद कभी आपने एक्सपीरियंस करी थी? आप दिल्ली में थे, सो डिड यू हैव दैट एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड? हाँ, पानी की कमी यहाँ पे मैं दिल्ली में वसंत कुंज में रहती हूँ। तो वसंत कुंज भी एक ड्राई रॉकी इलाका है। और अब तो नहीं, क्योंकि अब वो सोनिया विहार और जो भी पाइपलाइन हुई उसके बाद से वाटर की क्राइसिस उतनी नहीं अब होती। लेकिन कुछ अर्ली इयर्स मुझे याद है, लगभग 2000 2001, तो दोज इयर्स पानी की कमी होती थी। कहने का मतलब यह है कि सप्लाई का पानी नहीं आया, गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाता था। तो उन दिनों हम लोग टैंकर्स मंगाते थे, और टैंकर मतलब 1000 लीटर का कुछ 200-300, फिर बढ़ते बढ़ते 500 रुपए तक में वो टैंकर आकर के आपका टैंक भर के जाता था। और वो सब के सब ग्राउंड वाटर ड्रिल करते थे, प्राइवेट टैंकर्स, मतलब जिन जिन उन टाइम पे टैंकर्स करे वो सब, उनका काफी अच्छा बिजनेस चला। और दिल्ली जल बोर्ड से भी मतलब, तो वो यहाँ पे वसंत कुंज में मैंने वो दौर देखा जब पानी नहीं मतलब पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम होती थी और गर्मियों में मुश्किल आती थी। उसके अलावा मेरा बचपन कानपुर में गुजरा। तो कानपुर में भी मुझे याद है बचपन में कुछ गर्मियां ऐसी थी कि जब सप्लाई का पानी नहीं आता था कुछ दिन के लिए, तो वहां पे घरों में हैंडपंप्स थे फॉर टाइम्स लाइक दैट। तो हम मतलब कुछ कुछ इंस्टेंसेस मुझे याद है that we would pump water from the hand pump and fill up 8 to 10 buckets to go through maybe 2-3 days before water comes in. So I have seen it. पर वो ही होता है कि जब आप पानी की किल्लत होती है उसी वक्त आपको पानी की इज्जत होती है। जब वो आ जाता है तो बड़ी आसानी से आप भूल जाते हैं उसको। तो ये है, मतलब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ ये बात। जब पानी नहीं होता तो आप एक एक ड्रॉप को बहुत मतलब केयरफुली यूज करते हैं। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट इन माय चाइल्डहुड एंड इवन हियर इन लिविंग इन दिल्ली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने ये सुना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जब नलों में पानी आने लगा तो सब कुछ गड़बड़ा गया। सो वो जो एक कॉन्सेप्ट जो है वो काफी हद तक सही है। और जैसे आप टैंकर की बात 2001 की बात कर रहे हैं, आज हम 2023 में हैं और मैं पूना में रहती हूँ और हर दिन ज्यादातर बिल्डिंग में 2-3 बार टैंकर्स जाते हैं।
Wow. सो आप सोचिए, जब लोग पूना की बात करते हैं कि अरे वो तो हरा है, अरे वो तो कितना क्लीन है, अरे वो तो, मैं बोलती हूँ आप कुछ बोलिए मत, यहाँ पर आइए और एटलीस्ट एक हफ्ता रहिए और सही सही जगह जाइए। सो जो कहने की बात है और जो एक्सपीरियंस करने की बात है वो बिल्कुल अलग होती है, तो इसी आपने हाँ जी। आपने पुणे का जिक्र किया तो मुझे पुणे से याद आया कि मैंने जब फिल्म मेकिंग, जब मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई 2000 में करी, और शुरुआती साल थे जब मैं फिल्म में, मुझे बनाना कुछ आता नहीं था, पर ऐसे ही मतलब इन माय फॉर्मेटिव इयर्स व्हेन आई वाज मेकिंग फिल्म्स, आई one of the second film that I made was on Pani Panchayats in Pune, हाँ, and this was the year 2002 or 3 maybe. और वो फिल्म का नाम था वाटर इग्नाइट्स लाइफ एंड होप। तो उसका एक हिस्सा मैंने पुणे के आउटस्कर्ट्स में, उस टाइम पे जिनको फादर ऑफ वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, विलासराव सालुंखे जी थे। ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड वाटर प्रोफेशनल, और उन्होंने ये पानी पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू करा था इन 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 दीज एरियाज अराउंड पुणे। अब मैं बिल्कुल भूल भी रही हूँ, पर पुणे से मुझे याद आया। और पानी पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पानी को हार्वेस्ट करें, पानी को बचा करके फार्मर्स के बीच में उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका उन्होंने निकाला था। और उससे उन गांवों में काफी बदलाव आया, और यहाँ तक कि रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ। जो लोग गांव छोड़ के चले गए थे वो लोग पानी की वजह से वापस आए। तो माय फर्स्ट learning in water happened in Pune with Vilasrao Salunkeji and with Pani Panchayats, which were very famous, and as a concept, a lot of people still remember it. Yes, and in fact हम लोग आगे के आने वाले महीनों में हम वो फिल्म को ढूंढेंगे और उसके बारे में भी हम कर सकते हैं बात, बिकॉज पानी पंचायत के बारे में अब वापस से बात होने लग गई है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सेशन अटेंड किया था जहाँ पे पूरे देश भर के जिला परिषद के लोग, कलेक्टर और ये सब ऑफिसेस के लोग थे, और वो कह रहे थे कि जो पंचायत जो बनाई गई थी गांव में एक थर्ड पिलर के रूप में, उसका कभी सदुपयोग हुआ ही नहीं। उसको वैसे अथॉरिटीज और जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। तो अब वो रिवाइव करने के लिए सब लोग उस जहां जहां पानी पंचायत, they were all talking about it. So yes, I heard about it couple of days ago and I would like to show something from the film right now कि कैसे जब पानी नहीं रहता तो हमारे जो मिथ्स, सुपरस्टिशंस और बहुत सारी जो चीजें होती हैं इवन वो भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि एक डेस्परेशन में हम पहुंच जाते हैं, एक मोड में कि हमको कुछ भी करके पानी चाहिए। तो मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी और जस्ट सी कि कैसे हम लोग, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जुलाई का महीना भी निकल गया, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। बाड़मेर के चकनगढ़ा गांव में 10 साल के चंदू को मेढक बनाया गया है, जो इंद्रदेव को पुकार कर ये बताएगा कि गांव में एक एक घड़ा सूखा पड़ा है। चंदू के नेतृत्व में ये जुलूस घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करता है। इस पुराने रिवाज में सभी भाग लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आखिर में गांव के सूखे तालाब के पास जमा होकर दिन भर की अनाज की कमाई को गुड़ के साथ पकाया जाता है और इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। तब कहीं जाकर बच्चों को ये मीठा प्रसाद मिलता है। मगर इतनी सारी पूजा पाठ और खेल कूद के बाद भी बारिश गायब है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आते और चले जाते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर। अब आप देखें कि बारिश को बुलाने में, उसको गॉड्स को इन्वोक करने में हम बच्चे, बूढ़े, हर किसी को कैसे अपनी जुगत लगानी पड़ती है।
और उसके बावजूद भी सोचो जब बारिश नहीं हुई तो बच्चों को क्या लगा होगा कि क्या वो मेंढक ठीक नहीं था, क्या हमारी प्रार्थना काफी नहीं थी, एक वो डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है. बट व्हाट एल्स. सो आपने जब ये शूट किया तो ये मेरे लिए तो बहुत नया, जब मैंने देखा तो बहुत नया कॉन्सेप्ट था, बिकॉज अब तक मैंने बड़ों से रिलेटेड चीजें देखी थी. ये वाला एक ऐसा पहली बार देखा जो बच्चों से रिलेटेड था. तो आपको ये शूट करने में कैसे, बहुत मुश्किल आई कि ये बहुत स्मूथली हो गया? नहीं, दिक्कत नहीं आई. मतलब वहां पे पानी से जुड़े इतने इतनी कस्टम्स हैं, इतने रिचुअल्स हैं, इतनी फोकलोर है, गीत हैं, सब कुछ उनका वे ऑफ लाइफ पानी के इर्द गिर्द. पानी को उनकी लाइफ में बहुत सेंट्रल रोल है. तो और like I said, the only one thing that I feel about Rajasthan and the people of Rajasthan is their spirit of living. तो वो बच्चों में और बड़ों में और बुजुर्गों में सब में है. मतलब कि इतनी पानी की किल्लत होने के बावजूद कोई वहां रोता गाता नहीं मिलता. Nobody is whining, they are so spirited. और कोई तो उसका सोल्यूशन निकालना है तो ये जैसे ये शूट करा तो मैंने पूछा था वहां पे कि रिसर्च में कि क्या ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, क्या कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं. तो पता चला कि ये एक किस तरीके का एक वो होता है जिसमें बच्चे को मेढक बनाते हैं, फिर पूजा होती है, फिर तो वो मतलब एक थोड़ा सेलिब्रेटरी भी हो जाता है कि मतलब जब आप बिल्कुल पानी नहीं है तो हाउ डू यू कीप योर स्पिरिट अप. तो वो बच्चे मतलब ये सब करते हैं, घर घर जाते हैं, सब बनता है. तो इट्स ऑल्सो स्ट्रेटजी टू डील विद द हार्डशिप ऑफ लाइफ, मुझे ऐसा लगता है. और मजा आया था शूट करने में. मतलब काफी यू डोंट नो हाउ इट विल बी ना, आपको जैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये इस तरीके का होगा, पर वो एक बार फ्लो में आया तो बच्चे तो अपनी धुन में एक घर से दूसरे घर से इधर से उधर बिल्कुल, किसी को कुछ डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी. बस वी हैड टू कीप रनिंग विद देम. तो अच्छा था. इट वाज वेरी नाइस एंड आई थिंक या दैट्स व्हाट आई फील दैट आपने भी प्रसाद खाया होगा, वो टेस्ट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लुक्स सो डिलीशियस. खाना पीना बंद नहीं होता वहां पे. बहुत बहुत खाना पीना चलता है. wherever you go you're fed, you're overfed. So we should start calling resilient Rajasthan. Absolutely. Great. Absolutely. Is my audio and video okay or is it lagging? No, it's okay. Okay. So because I could hear कि Rishu की आवाज थोड़ी lag हो रही थी. Mansee, at this point of time, would you like to ask? Do you have any questions for Rishu? Yes. Thank you so much, Anuja, and it was really nice listening to both of you. I would like to really see a little bit more of the film here. And while you are setting up the film video for the next round, I have a small question to ask from Rishu. You made a very important point here, Rishu, that how people, strategically, they are trying to tackle their adversaries through, some kind of appreciation for each other and some kind of celebration amongst each other. Do you think that this kind of, resilience can be really inculcated in the urban community? Because we all belong there. And unfortunately, we don't still face the water crisis which they face. Yeah. But if we want to make them realize the crisis, do you think this tool can be also used to really come up as a community? Urban community में तो community feeling ही नहीं, crisis तो बाद में होगी. What is your take on living in urban area for so long years? नहीं, ये बात तो सही है कि अर्बन सेटअप में लोगों को साथ ला पाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है. बिल्कुल. हाँ, और इसका कोई आसान तोड़ तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू मोटिवेटेड पीपल. वो मतलब जहाँ पे लोगों का विल और कमिटमेंट होती है वहां पे कर लेते हैं.
रही बात कि इस तरीके का कोई टूल इस्तेमाल किया जाए जिससे कि अर्बन सेटअप में लोग मोटिवेट हो, यस एंड नो। Difficult question, huh? We need crisis for that, right? We need crisis for that. मैंने बहुत कम एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे अर्बन में लोगों ने जुड़ के काम किया हो, ऑनेस्टली। With after crisis or just for the sake, doing Garba is a good thing, but then coming together to solve a problem is not happening, huh? Anyway, over to you, Anuja and Rishu, and maybe we see in a little bit next part of the film. Thank you. I will ask my question. You are so correct. गरबा करा लो या कुछ ऐसा करा लो, that doesn't make sense. सब लोग आ जाते हैं, but जहाँ पे आप ऐसे important चीज के लिए बुलाते हैं तो कोई नहीं आता है. I don't know उनके लिए important चीज क्या है. मैं तो आज तक वो figure out नहीं कर पा रही हूँ कि what do they think is important. But these celebrations are important क्योंकि सुख में साथ होंगे तभी दुख में साथ होंगे. So I mean I'm just trying to figure out tools to bring urban community together, which I think major thing which we must learn from the rural areas. Yeah, I think Garba without water will be a good thing. गरबा करो लेकिन पानी की एक बूंद ना रहे तब उन्हें पता चलेगा, या फिर कॉन्सर्ट करो और एक बूंद पानी ना रहे फिर देखो क्या होता है, तब पता चलेगा. Here I'll show you. This is an intervention which I thought जो उन्होंने जो बनाया था, एक ये छोटा सा देखिए आप, और फिर बड़ा सिंपल इंटरवेंशन था which I'm sure is applicable even. देगा सर, लोग बाग भागेंगे, गांव छोड़ेंगे, कहीं जाके पानी वहां बैठेंगे और तो क्या जानवर मर जाएंगे. जानवर तो साथ नहीं ले जा सकते, यही होगा और तो क्या होगा. पीने के पानी का संघर्ष थार रेगिस्तान में पुराना है. भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ थार दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है. यहाँ प्रकृति हर मामले में कठोर जान पड़ती है. देश में सबसे कम बारिश यहाँ होती है, कोई बारहमासी नदी भी नहीं है और भूजल खारा है. और फिर बचती हैं ये टंकियां जो दूर दराज के ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करती हैं. मगर भीषण गर्मी में बिजली की कमी के कारण इन गांवों तक पानी नियमित तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता. टंकी में पानी महीने में एक बार आता है, लाइन ही नहीं आ रही, 2 दिन पानी कहाँ से आएगा. पाइपलाइन नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ से आएगा. और तहसीलदार की टंकी कभी आती है, टैंकर गांव में खाली होता है तो 2 घड़े मिलते हैं और कोई पानी की सुविधा नहीं. स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, मगर इससे यहाँ के लोगों के जीने के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती. 90 साल की किचनी अब उसे हंसी में उड़ा देती हैं. वो सूखे के दिन जब पीने का पानी जोधपुर से रेलगाड़ी में लाद कर बाड़मेर तक भेजा जाता था. मीलों पैदल चलकर वो ट्रेन तक पहुंचती और फिर पानी घर तक लाती. पर अब ऐसा नहीं है. इनके परिवार के पास खुद का टांका है, ठीक घर के बाहर. इससे घर की बहुओं का जीवन बहुत बेहतर है. इस सूखे में भी इनके टांके में कुछ पीने का पानी जमा है, और वो भी जून में सिर्फ एक बरसात की बदौलत. ये टांका बेशक नया है, पर रेगिस्तान में ये नियम बहुत पुराना है. अगर यहाँ जिंदा रहना है तो पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये टांका पानी जमा करने का सबसे आम तरीका है. आप जमीन के नीचे एक पक्का टैंक बनाते हैं और उसके चारों ओर एक ढलान वाला आगोर यानी कैचमेंट. आगोर को साफ सुथरा रखा जाता है और टैंक में पानी के प्रवेश स्थान पर जाली लगाई जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का कचरा बाहर रोका जा सके. बारिश होने पर आगोर पर पड़ने वाली हर एक बूंद सीधे टैंक में जाकर गिरती है. यहाँ जो पूंजी जमा हुई वो है स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी. अगर अच्छी बारिश हो तो एक टांका 30,000 लीटर से लेकर 1 लाख लीटर तक पीने का पानी इकट्ठा कर सकता है, जो लगभग 6 से 8 महीने तक काम आ सकता है. बरसात का पानी अगर साफ टांके में रहेगा तो आपको साल भर में साफ करने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप साफ पानी उसमें लेते जा रहे हैं और उस पानी के टांके पे अगर एक हैंडपंप लगा दिया तो पानी गंदा होगा ही नहीं. कैसा होगा पानी गंदा, बताइए.
उसमें कुछ गिरेगा ही नहीं, आपका साफ पानी जा रहा है, हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, इतना स्वच्छ स्वास्थ्यकर पानी हम उससे पी पाएंगे। This is what I was saying. It's a very simple intervention and it's like empowering. हर एक घर में अगर ये solution होता है तो एक तरीके से पानी की समस्या ही नहीं रही. Of course it depends on the rainfall. लेकिन जैसे कि ये राजस्थान में है, I was thinking ये हर जगह और बहुत जगह भी हो सकता है, क्योंकि लेट्स से महाराष्ट्र में तो बहुत पानी गिरता है लेकिन वो पूरा बह जाता है, उसको कोई स्टोर ही नहीं करता है. सो आपको क्या लगता है, मतलब लाइक मानसी इज आई गेस वाटर में एक्सपर्ट हैं, तो उनको क्या लगता है, या फिर ये यू नो द अर्बन प्लानिंग टेक्निकल एंड ऑल दैट, मैं उस तरीके से, मैं सिर्फ इनोवेटिव तरीके से सोच रही हूँ कि क्या ये शहरों में किया जा सकता है? क्या ये इतना बड़ा है कि सोसाइटी वाले रोना नहीं चालू कर दें कि हमारे पास सोसाइटी में पार्किंग की जगह नहीं है, हम ये कैसे बनाएं? मतलब यू नो उनका हमेशा एक रोना रहता है. You think that this is a replicable solution for villages as well as cities? What is your thought? I think the concept can apply anywhere, क्योंकि आपको वैसे के वैसे तो नहीं, उसको थोड़ा अडेप्ट कर सकते हैं. कहाँ, मतलब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शहरों में कई जगह बिल्डिंग बाय लॉज में मैंडेटरी करी गई है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में. और उन बायलॉज को अवॉइड करने के लिए लोग कुछ कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं कि उन्हें ना करना पड़े. लेकिन अगर करना चाहें तो करने के तरीके निकाले जा सकते हैं. ऑफ कोर्स हाई राइज वगैरह में मुश्किल है, लेकिन अगर आप कहीं से तोड़ निकाल करके बारिश के पानी को टंकियों में करें, तो स्टोर करें, तो अपने यूज के लिए रख सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जगह कितनी है. और अगर अपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते तो कम्युनिटी लेवल पे तो किया ही जा सकता है, क्योंकि जो हमारे कम्युनिटी स्पेसेस हैं, जहाँ पे पार्क्स वगैरह हैं, वहाँ पे छोटा सा स्पेस बना करके कुछ पानी का स्टोरेज किया जा सकता है, ताकि कम्युनिटी के जो वाटर नीड्स हैं वो उससे मीट हो सकते हैं. कुछ तो तरीके कई हो सकते हैं, पर उसके लिए एक विल होनी चाहिए. मैं ये नहीं मानती कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते. इनफैक्ट अर्बन कॉन्टेक्स्ट में उसकी ज्यादा जरूरत है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में अनुपम मिश्रा जी के टेड टॉक में उन्होंने ये कहा था कि मतलब लैंड को हमेशा रियल एस्टेट के लिए देखना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है. लैंड को वाटर के लिए रोकना, मतलब लैंड को अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सेट असाइड कर सकें, वो जरूरी है. मतलब क्योंकि शहरों में सबसे बड़ा सवाल ये सब कहेंगे कि जगह का है, जमीन कहाँ है. लेकिन जब पानी नहीं होगा तो हमको फिर वो, मतलब अपने आप ही हमको वो जमीन भी दिख जाएगी, जगह भी मिल जाएगी. सो आई फील दैट घर के लेवल पे करने के भी तरीके हैं. जो लोग इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं, जिनके पास छोटे छोटे गार्डन्स हैं, वो तो बेशक कर ही सकते हैं. जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए मुश्किल है, लेकिन कम्युनिटी स्पेसेस में बिल्कुल स्टोरेज की संभावना जरूर है. हम नहीं कर रहे, वो हमारी महानता है, क्या कहा जाए. देखिए, किया जा सकता है, करना पड़ेगा मेरे ख्याल से आगे के टाइम. महानता महानता जैसे कि जैसे यू नो विनोद गुप्ता ने कहा कि डिफिकल्ट टू डू एट कम्युनिटी लेवल, इट नीड्स वेरी गुड हाइजीन. सो yes, we do understand. यहाँ पे तो you know मरे हुए जानवर इन लोग नदियों में छोड़ देते हैं, कचरा हर जगह फेंक देते हैं, तो that is a very big problem everywhere. Civic sense is not common, you know, a common sense nowadays. लेकिन स्मार्ट सिटी जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही एक अजीब सा कुछ खोलने लगता है मेरे अंदर. बिकॉज स्मार्ट नाम क्यों रखा? बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली नन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, नन ऑफ द डूइंग्स, नथिंग इज स्मार्ट. मतलब कुछ कारण होगा. आई एम श्योर इट्स एन एक्रोनिम, अ wannabe acronym, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्योंकि छोटे छोटे भोपाल जैसे शहर, जो कि एक कोने से दूसरे कोने आप यू नो आधे घंटे में खत्म कर लोगे, 45 मिनट में खत्म कर लोगे, वहां पे आप मेट्रो क्यों बना रहे हो? सो
I don't think that's smart, but that's not a water related thing. लेकिन मैं हम कुछ टाइम वो भी रखना चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स रह सके. At this point of time, Mansee, would you like to ask, or should I show some more portion of the film? Small portion of the film, please, and maybe Ashwini and Vinod can also unmute themselves and ask questions. Yeah. जब तक मैं फिल्म का पोर्शन वो कर रही हूँ, अश्विनी एंड विनोद, आप you are most welcome to unmute and go ahead, ask or share what you want to. So if they are not asking question, I have a little question again to continue with. When we do these kind of film, and especially when we see that they are far-fetched, and I am strong believer that any reform in the society, if we look from the history of human evolution, all over the world, not India alone, all forms of art have played crucial role in bringing a change in the society. In fact, we give more credit to science to bring a change. Science has brought change, but human behavioral change is more driven by art. What is your experience in your career so far, Rishu, that how art has been so impactful and deep, and how much we should now use that, especially for climate change and water scarcity or crisis? How should we more exploit it? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि art can play a role, and of course it has played a role. मैंने ये देखा है कि कई बारी एज एन आर्टिस्ट या एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कुछ बनाते हो, आप जो बनाते हो अपनी विजन के हिसाब से, वो कैसे इंटरप्रेट हो करके कैसे रिसीव करती है ऑडियंस, वो कुछ अलग ही चीज होती है. तो और वो उसमें उनका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस शामिल होता है. तो मैंने अक्सर ये देखा, जैसे ये बारमेर की फिल्म में जो फीडबैक यूट्यूब पे है, बहुत सारे राजस्थान के लोगों ने इसको सराहा है. कहीं ना कहीं इट टच्ड अ कॉर्ड कि कुछ उनकी पुरानी जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, जिनसे वो थोड़ा सा शायद दूर होते जा रहे हैं, उनको ये देख करके वो अच्छा लगा और वो कुछ एक सेंस ऑफ प्राइड आई. तो पर मैंने वैसा नहीं बनाया था, मैंने एक चीज को प्रस्तुत किया, पर उन्होंने जब उसको देखा तो उनका कुछ अनुभव अलग रहा. वो उनकी नजर से उन्होंने देखा. तो मैंने ये देखा कि मेरी फिल्म में जब मैंने शेयर करी है, उसका सबसे ज्यादा जो फीडबैक आता है ना, वो वहाँ के लोकल ऑडियंस से आता है. बहुत ही मतलब बहुत पर्सनल फीडबैक होता है. मैंने एक फिल्म गोरखपुर पे बनाई है, वो आज भी बहुत यूज होती है गोरखपुर में, जस्ट टू रेज अवेयरनेस ऑन क्लाइमेट चेंज. गोवा में मैंने एक क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर एक फिल्म बनाई, तो वहाँ के लोगों से बहुत सुनने को मिला कि आपने ये फला जगह दिखाई, उस फला जगह का ये महत्व है. तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ जब रेजोनेट करता है ना, तो लोग उसमें जुड़ते हैं, इमोटिव होते हैं, इमोशंस आ जाते हैं उसमें, एक ड्राई सब्जेक्ट में. तो आई फील दैट वी नीड टू यूज दिस मीडियम मोर. One of the things that I am doing, जो मेरे इंट्रोडक्शन में अनुजा ने बोला कि मैं एक ग्रीन हब नाम के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में अभी चल रहा है. और उसमें क्या हम करते हैं कि हम जो यूथ हैं, खासतौर से रूरल और ट्राइबल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उनको हम फिल्में बनाना सिखाते हैं. और वो फिल्में भी इकोलॉजी और डेवलपमेंटल इश्यूज पे होती हैं. तो उसमें टेक्निकल चीजें वो सीखते हैं, और जो अपना एक्सपीरियंस खुद लेकर के आते हैं, उससे मिलकर के जो फिल्में बनती हैं, उससे वो जो चीजें वो बना करके लाते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव. सो आई फील वी नीड टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल इन दिस इन द क्रिएटिव फील्ड्स, एंड वी नीड टू लुक फॉर people who are from marginalized community who do not have these opportunities. हमें उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए अपनी कहानियां बताने का. तो वो बहुत ही उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा. That's what I feel. आपने एक बहुत अच्छी बात कही when you said that when you make a film on, let's say आपने बाड़मेर पे बनाया, गोरखपुर पे बनाया, गोवा में बनाया, so people are able to touch, I mean the reason they are able to relate.
So somewhere I get a feeling just now when you were saying this कि somewhere हमको भारत है या इंडिया है वो हमको दूर लगता है, you know, कि इंडिया में वाटर क्राइसिस है वो हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं वीजा वी when we talk about कि ये मेरा रीजन है या जहाँ जो लोग मतलब व्यूअरशिप भी अगर मैं देखूं 10 million plus viewership you have for the film which we are watching today and discussing. So somewhere the viewership is also related to the local viewership more than global. So इशू को बेसिकली जितना हम डिसेंट्रलाइज करके ज्यादा प्रोजेक्ट कर सके और वैसे भी बूंद बूंद से ही जैसे हम बात करते हैं कि अगर से सागर भरता है उसी तरह आई गेस डिसेंट्रलाइज करने से वो एक जो स्केल है दैट आल्सो पीपल आर एबल टू रियलाइज because if we tell them that sea level rise is happening then of course as an individual as a community I can't do much about it, you know. So at a village level you can relate it. So when you were saying this I could feel that when that the scale it becomes very important at which you are conveying the message, so yeah, thank you. Anuja. Play. So you're mute. She has to play. Now play आपका नहीं हो रहा है शायद. Okay, are you able to hear see the thing? No, we are. It's not moving. So you have to press the play. Okay, 1 second. So मैं ये कह रही थी जैसे आपने हब की बात करी मैंने उसके बारे में पढ़ा है and I'm aware of that and I have really appreciated that concept and इति स्किल स्कूल में यही हम करना चाहते हैं जो गांव में जो एक्चुअल उन लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको वो सिखाना all these communication critical thinking ये सब सिर्फ words नहीं है ये सब how to convert them into action वो हम सिखाकर उनको उनसे ही बोलेंगे कि ये हमने सिखा दिया अब आप बनाइए फिल्म और हम आपको बताएंगे कि आपका मैसेज कहाँ तक जा सकता है. So we'll talk about it later, but watch this. This is so nice कि पानी की कमी है लेकिन वो अपने जानवरों को पीछे नहीं छोड़ते. मतलब वो सब एक समता जो है इंक्लूजन जो है तौर पर ऐसा लगता है जैसे ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं पर ऐसा नहीं है. बेरी ज्यादातर सूखे तालाब की जमीन पर छोड़ी जाती है. ये बहुत सकरा कुआं होता है. गहराई भी 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होती. साल के ज्यादातर समय बेरियां पानी में डूबी रहती हैं. गर्मी के दौरान जब तालाब सूख जाता है तो जमीनी सतह से ठीक नीचे नमी वाली जिप्सम बेल्ट से पानी धीरे धीरे रिसकर बेरी में इकट्ठा होता रहता है. बेरी एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है. आज आप उसमें से मीठे पानी की आखिरी बूंद भी निकाल लीजिए मगर कल उसमें फिर पानी जमा मिलेगा. ये एक पार्ट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे थोड़ा आगे एक और पार्ट है जो बताता है कि जब पानी गिरेगा तो यहाँ पर समय के साथ साथ यहाँ के राजाओं और प्रजा ने मिलकर कोई 52 तालाब बनाए जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता और पूरे शहर की जरूरत पूरी करता. इनमें सबसे बड़ा तालाब था घरसीसर जो सबसे प्रसिद्ध भी हुआ. सुंदर नक्काशी वाले पत्थर के स्तंभ मिले तो समझ जाइए तालाब आसपास है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए. जो सदा जीवित रहे यानी अमर सागर जैसा शानदार तालाब भी था. बारिश अगर हाथी को डुबो दे तो इसका मतलब तालाब का पानी 6 महीने तक चलेगा और अगर घोड़े को डुबो दे तो बात ही क्या, पानी साल भर तक काम आएगा. ये सारी ही रवायतें प्रेरणा से भरपूर हैं मगर सच तो ये है कि गुजरते वक्त के साथ काफी कमजोर पड़ गई हैं. ये जो हाथी और घोड़े का जो कॉन्सेप्ट है कि उससे लोगों को अपने आप पता चल जाता था वो कितना एक एम्पावरिंग डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग का तरीका है बिना कुछ सोशल मीडिया या पैम्फलेट्स या कुछ लिए. जस्ट इमेजिन. और ये जो हमें मजदूरी दी गई साथ मिलके जो बनाए हर एक टांकी में लगभग 30,000 लीटर पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता था.
2000 तालाब और 500 बेरियों की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। ठीक एक साल बाद 2010 के मानसून में बाड़मेर में सिर्फ नए टापों में लगभग 1300 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हुआ। टोको हमारे भरी थी 3 साल में, तो साल भर तक ही हमारा समस्या खत्म हो जाए। पानी नहीं हो, टोको नहीं भरी, जब पानी नहीं तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, नहीं था। 77 साल की मदन कौर बाड़मेर की जिला प्रमुख हैं और 1960 से लेकर अब तक लोगों के बीच काम करती आई हैं। उनका मानना है कि सरकार के रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए हर एक परिवार को पीने के पानी के लिए सक्षम बनाना चाहिए, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर। हमारी जो रीजनल स्कीम्स हैं, रूरल रीजनल स्कीम्स है पानी देने की, उसमें हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और गांव में निःशुल्क पानी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप पानी आता है तो, ना आए तो अलग बात है। और उसके मैनेजमेंट में लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए मैनेजमेंट पे खर्च करते हैं, कितना बड़ा स्टाफ लगाते हैं। इवन देन, क्योंकि दूरियां बहुत होती हैं, वो ठीक से सप्लाई पानी कर नहीं पाते, लेकिन वहां भी निःशुल्क है। उसमें चाहे एपीएल है, बीपीएल है, सबको निःशुल्क है। तो फिर ये नरेगा में जब हम लेबर आदमी को एपीएल बीपीएल तो सबको देते हैं, तो फिर टाका भी लेना चाहिए। एक बार आपने टाका बनाकर दे दिया उसको, उसकी सार संभाल, मेंटेनेंस, एवरीथिंग वो खुद काश्तकार करेगा, चाहे वो एपीएल है चाहे बीपीएल है। तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी सरकार को। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। एपीएल को भी बात काफी सीधी सी है। अगर देश के सबसे सूखे इलाके में रहने वाले लोग अपने पीने के पानी का खुद समाधान कर सकते हैं, तो फिर किसी भी परिवार या समुदाय को पानी के अभाव में जीने की कोई वजह नहीं है। मैं तो सच में ये कहूंगी कि सारे देश में पीने का पानी तो हर परिवार को अपना इकट्ठा करना ही चाहिए, क्योंकि नदियों में भी धीरे धीरे पानी कम होता चला जा रहा है और हमको वो पानी खेती बाड़ी के लिए भी चाहिए। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पास करने वाले हैं, तो कहाँ से देंगे अनाज लोगों को, कहाँ से देंगे दालें लोगों को? वो पानी तो हमारा सिंचाई में काम में आए। और पीने का पानी हर परिवार इस देश में कहीं भी रहे, कोई भी रहे, अपना पीने का पानी उसको अपने छत से इकट्ठा करके रखना ही चाहिए। This is the message that I want to give. I just don't have any words. I love that message and मैं तो चाहती हूँ कि इस फिल्म को मैं और मिलियंस लोगों तक पहुंचाऊं, बिकॉज इतना इम्पैक्टफुल और सरल मैसेज है। आप सबको क्या लगता है? प्लीज शेयर योर व्यूज। मैं तो बोलते ही जा सकती हूँ उसके बारे में, सिर्फ एक लाइन के बारे में। आई एम जस्ट अ फैन ऑफ दिस लेडी। उनकी पर्सनालिटी जो है मदन कौर जी की, बहुत मतलब उसमें कितना वजन है, जिस तरीके से वो बोलती हैं, बताती हैं। तो आपने जब मुझे कांटेक्ट किया और मैं फिर आई जस्ट वांटेड टू सी कि वो कहाँ हैं, अभी क्या कर रही हैं, तो उनके यूट्यूब पे वीडियोस मुझे मिले पिछले साल तक के। शी स्टिल एक्टिव, वो जाती हैं पब्लिक गैदरिंग्स में, बातचीत करती हैं, शायद कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन नाउ दिस में मेरा जन्म हुआ, तो मतलब शी इज नियरली 90 नाउ एंड शी इज स्टिल एक्टिव डूइंग पब्लिक सर्विस, यू नो। तो इन लोगों से तो बहुत सीखने को मिलता है थोड़ा। व्हेन वी मीट देम दे टीच अस सो मच। Yeah, we would love to have her as the Wiki Water Resource Council में. It'll be so good. मतलब she's a treasure house. I'm sure हम लोग बहुत कुछ सीख सकेंगे. I tried at least 15 people to get her contact number. To be honest, in last 1 week. Oh, okay. अश्विनी और विनोद, आप कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to share something? Yeah, I think first thanks to Mansee, because I was interacting with her for some other session. Then she told that we are on this session. I joined suddenly. But
certainly it's, I think, overwhelming experience what I got in this film as well as discussion. Um, Here, I think there are, what I feel is uh, what we trying to show the importance and the crisis, water crisis, which is more, you can say, prevalent and more seen in a rural setup, while the wasteful water life which we see around us is an urban setup. That's, I think, is what contradiction what we have in our society need to be somehow, I think, opened up for the dialogues in that sense. That when urban India has only, as of now, 30% of the population, probably they are consuming around 90% of the water for drinking, what I'm saying, not for agriculture and other places. Maybe. So is it it generates many questions in that sense, including that do we have a right to waste the water? We have a right to drink the water. Do we have, as urban dwellers, have a right to waste the water? No, we don't have. So the thing is that this movie, as well as I think other movies which I've seen in a similar context, are trying to highlight the misery of the people and the crisis exist. But the mindset of the urban dwellers or urban resident is entirely different, where the psyche of the person is that I am important, my time is important, and I have to earn from my own economic gain. These are the 2, 3 things which is over dominating for any other social or environmental concerns, whether it is a waste management or whether it is, I think, dealing with the people who are urban poor or anything. I think that's where we have to bring kind of tone down that tendency and bring it down to the humane level. I think that is where something is needed, and media can play a great role in that sense. So I think mostly since we are showing these kind of things which are happening in rural, the person who is seeing in urban context may appreciate, and those who will be fully supporting, they are already like-minded. Yeah. So what we have to cut across the mind is those who don't like it, those who have not experienced it in that sense. For them, we need I think also to document or bring out the things which are crisis happening in urban India. It's equally, I think, water crisis which are waiting and happening, like day zero, which is for with the Rajkot in Gujarat, and I think 2 years back, many cities in India have been almost declared day zero. Even I think water train used to be supplied to the Latur, which is a town, not I think at a rural setup. So that will, in a way, I think will try to hit the urban dwellers as well. So that is, I think, is looking at the success of these media. I think on these kind of subjects, I feel if that is we are able to target, the urban dwellers will able to relate it better. The same way the rural people community is able to relate and they are giving you the feedback. If we bring out the issues in urban India, then I think it will be doing the much larger impact on the water conservation in cities. So that's what I can say. And thanks again. Yeah. Thanks. And let me just add here, Ashwini, you just hit the nail. But I guess because that we are already friends for so many years, so we think alike like that. But maybe like directors like Rishu have to really take this as a subject, because we are often looking at the vulnerable community, and we are not looking at the people because of whom a community is vulnerable. Yes. Because the policy making people, because the filmmaking people are that part of the community, we try to pretend not to really document that those things, not to really talk about it. So how many films are there on wasting water, Anuja? For our sake, we have been doing water talkies. We have not yet got a film on who is wasting water. We don't have films who are wasting water. In a way, films are for the hero and the demons. No, so we don't have demons in this kind of films. We don't have demons. So if we are able to bring out those who are using into the swimming pool the fresh water, those who are wasting the water in a car, you bring out those pictures also in between, then there is a kind of psych may generate. People start hating. Look at these people who are bringing water. Look at these people who are demons. So we have to
bring out demons and show that you are demon if you are doing this. In a summer when people are going 10 kilometers, walking 10 kilometers for bringing up one pot of water. There's the other side of the people in summer who are going to the water parks. And also showering for 1 hour. So you show that contradiction in the same movie. I think that will generate a very, very debate and kind of impact that people will say, okay, these are the people who are suffering and who is due to whom. जो जैसे होता था ना पुरानी मूवी में गांव का जमींदार and something who was playing the demon's role. So here that those demons will come as urban dwellers, and that's I think is what we want to hit those days mind. We are not doing it. We are not doing it. I remember last year I wrote an article on water extravaganza, and I'm not surprised that there are not many reads of it. But we have to really do that. Rishu, let's do it. May I add something here? Please, Vinodji, please. Ashwini's point, and most of us architects who think about this are always worried about drinking water and what we use for washing and cleaning and so on. And that's where our wastage of water lies. But this is actually quite wrong to think that we can live with this 100 or 200 liters or 300 liters of water per day. All the 70% of fresh water in the world is used for agriculture, and we consume this every day. So we are actually eating a lot of water, and that water is being calculated for Indians is 1,800 to 2,000 liters of water per person per day. That is what we need to worry about. And if we are short of water, we will not be short of drinking water because cities will always have it. We will be short of food in times to come. Yes, absolutely. So we need to worry about that part, and that is not going to be solved by us, doing some things in the urban areas. It has to be solved in agriculture, in rural areas where we have to save water and change our agriculture practices, perhaps change our diet, in which we will not be using so much of, stuff that takes a lot of water to grow. To change our diet is back to urban areas, sir, because most of the things are grown for the urbanites, because the farmers are still eating what they grow in their own yard, but we want to eat strawberry where no strawberry is not grown. We want to eat the Chinese dragon fruit. Gujarat is going gaga about Chinese dragon fruit, and it is a water guzzler. We are promoting sugarcane in a belt in Vidarbha where there is no water or is struggling with water. So, I mean, yes, completely agree with, water and food nexus. But at the same time, if we are not promoting sustenance farming and we want to promote farming for export, Dhoni is growing strawberry for Dubai and UAE. He's not growing anything for India. So, What are we talking about in water conservation? Yes, Rishu, you want to say something? Please go ahead. We have to stop the export of water through food. Yes, absolutely. Whether it is through meat or it is through strawberries. Virtual water. Sorry, Rishu, I interrupted you. No, I just wanted to respond to your point that we cannot ignore agriculture is the biggest consuming sector for water, and therefore it's very important. And I'm glad you raised that point. So I just wanted to talk to you about my very recent experience. I am right now editing in the post-production of a film that I shot in Purulia in West Bengal. And and this is typically a very dry, arid, undulating topography, drought-prone region. And an organization called Pradhan has been working here for the last 30 odd years. And I just came back from the shoot in May, just a month back. And it's beautiful because what they've done is, just because on the basis of watershed management, different kind of water harvesting techniques, they have completely changed the landscape
this Banduri watershed, where they have been working for the last 10-15 years. And, there were patches of land which they call upland, where nothing used to grow. They're growing mango over there. They have the farmers are growing less paddy. They're growing more vegetables. So they're trying to diversify so what I'm saying is that there are examples, there are good stories happening in all parts of the country. Various organizations, communities are doing this work. Purulia is a great story where be very barren, dull and dry. They have, made it green. They have improved the livelihood of the farmers in terms of, what they can grow from that land. They are helping people fight drought. And those farmers are now eating more diverse kind of food, because there's more nutritious food that they are growing and consuming. And the beauty of that Banduri watershed is that across West Bengal in 2017, the West Bengal government started a project called Ushar Mukti, salvation from barrenness. And they're using that watershed model to actually, across the state, 5 lakh households are, they are looking at that kind of a scale, and they want to revive 7 dying rivers from, just this whole watershed model. So I think Vinod's point is very important, that we have to be strategic. We need to know it's agriculture, industry, and domestic consumption. And therefore, it is important to find solutions in agriculture. It is important to find solutions in industry. But we need to tell fellow citizens in the urban setup that you cannot forever live with a sense of entitlement. That I will do what I want. I will use as much as I want. If we are all in it together, someday it will hurt us more. So the whole idea of equity and using resources responsibly is something that everyone needs to know. How, I don't know. I don't know whether films work, what works, but we all have to keep trying. We can't give up, so we keep trying. Let's see where we go. We will keep trying, and we shall not eat avocado or any crop or any fruit or anything which is so water, kind of intensive. Not consuming. It's literally encroaching and just taking away from others' share. And I know that Dr. Rajendra Singh, once we were having a meal, and he said, I don't eat rice. So my first question was, is it because it takes too much water to grow? And he said, yes, that is one of the reasons. And I said, I am so, when you understand that someone has given up this because of that, exactly. Conviction. Yeah, हमारे household में avocado और ये सारे strawberry ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं, because हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते directly or indirectly. So हम सबको वो करना पड़ेगा, and उसी से solutions आएंगे. हम कुछ बोल के कुछ और करें वो नहीं हो सकता. So the time has come, because it's now or never. The Third World War will be for water, and we can see that. So Mansee, over to you. Thank you so much for the wonderful questions, and it really kind of heats up the cool water debate. And I guess we should have all the films that you've made, Rishu. Sounds like a good series. Yeah, I'm happy to share them with you. Thank you, Anuja. Thank you so much for sailing through this session. Again, another good session. And Anuja, thanks for hunting these people out for us. It's literally hunting or fishing for us. Fishing is a better word, because in the water sector, it has been extremely difficult to find water talkies sessions for us. I will be very honest on this. So if we are able to still do it, I think a lot of hard work of the W4W Foundation team goes. And this is where Anuja plays a very crucial role through bringing people like Rishu here. So thank you, Rishu, for the wonderful conversation. And we saw snippets of the film. For reasons very valid, we are never showing the full film in these sessions, because the whole idea
is to really engage in conversation about making the film. And that is where the point where Rishu was talking about, I don't know how. I would like to take that point here where the whole foundation of W4W Foundation sits is that water conversations are extremely crucial for water conservation. So unless and until we talk about water, just like as we discussed today, now I'm very much motivated to find a film or feature film which talks about the water and food nexus and really bring it to people how our food choices changes the whole water dynamics, whether we are getting water from other countries or whether we are exporting our water to other countries in the form of meat and all kinds of food products. So we will do that some other time. But for the time being, let me just announce the next week's session. As you know, we actually conduct Monday Munching with Women for Water, then Wednesdays for Water and Friday.Waters. So next Monday Munching, we have Professor, if I'm not wrong, we have, I'm sorry, I'm forgetting what is the session, but let me just talk about next Friday, we have book reading session, which is on global groundwater source scarcity, sustainability, security and solutions. And we have Professor Abhijit Mukherjee from IIT Kharagpur to talk about it. And the next Wednesdays for Water, we have a biodiversity series, which is going on since February. And we will be talking about mangroves, and we will talk about its opportunities and challenges. And next Monday, which is just after 2 days, we have Dr. Ranjana Ray Chaudhary. Sorry, I was just forgetting her name, to talk about her life journey in the water sector. So that brings our next week's session details to you. And we look forward to your support and encouragement to bring these water conversations close to each other and also connecting over 250 speakers with each other. And that's also very motivating to really stay connected, because 250 can impact another 250, each one of us, you know. So thank you so much, all of you. And thanks all the participants for helping us slowly reach 200 sessions in August. So we are at least confirming our sessions until August. So thanks all of you. Please take care and we see each other very soon. Thank you.